वाली शीट ओपन करो. एक सेकेंड. डन. ठीक है, उसको ओपन करके ना ये आपको खुद लगाने हैं, अदरवाइज आपको आएंगे नहीं है. ठीक है. So let me just give the background. What are dynamic array functions, when they came, and what was the purpose and all that. Okay. So I will Right. tell you just one basic example. So basically, these were the 6 functions which were introduced in 2019. Okay. And these functions, first of all, handles multiple values together. This is the reason they are called array functions, because array is nothing but a collection of numbers. Right. Right. And second thing, why dynamic? Because they remain dynamic. As soon as you will update your base data, the result of these functions will update automatically. Right. So first function, filter. Like for example, if this is my main table and I ask you like, can you go ahead and give me the list of all the people who are from sales department? What will you do? You will go here, you will add the filter, Filter, and yeah. you will select that particular Let's see. department, for example HR or sales, whatever, HR, and you will tell me that these are the people who belong to HR department. If I say you that give this list to me, you will add the filter, you will copy this, and you will give me this here like this, right? Exactly. Right. But what if later on some more people are added in this main table from the HR department? Then it will not be It's not updated. that. Yeah. Right. So basically, first of all, you have to copy paste each and every time, right? Second, you have to do this manually, yet like filtering and then copying and paste. And second, it's not dynamic. There are two issues which were resolved by the dynamic array functions. Now, Right. how to do this? Like using dynamic array function. So that I'm going to tell you now using one function. Rest all functions you are going to add. Okay. So basically, in this filter function also we have various cases. Like we have filter with one condition, filter with AND operator where we can give multiple conditions, filter with OR operator. Right. So how to put the filter function? So first of all, I have defined this main table as a table. And what is the name of the table? Name of the table is filter data, right? Yeah. Okay, so I am writing here filter, which is the name of the function. Now it has three arguments, but we would be using it only two. What is the array? So my array is my table with the name filter data. And why Exactly. I have defined it as a table? So that it remains dynamic, right? And second, it is asking me what to include in this table. So basically, this is your main table and this is your subtable, right? So it is asking me what to include. Then I am saying where my filter data, when I open the square bracket, it's giving me the name of all the columns. You remember the properties of the table? Yes, it's Yeah. giving So depart. department is equal to, I am saying HR. So I am saying in this small table, include all the rows of the main table where the department is HR. This is what I am telling it to. Right. Now it says there is some problem. What is that problem? To get around this type of apostrophe, filter data department is equal to HR. So basically I have added the wrong comma. Can you see here? हाँ यहाँ पे सिंगल आपने लगा दिया था. Right. Yeah. So now it is working, Yeah. right? It's Yes. giving me the list of all the HR people. Now, for example, I'm changing the name of any department. Yeah. For example, this one I'm changing to HR. You will notice that one more row has It been added here, it will also get changed. right? So If it I am is fine. adding any row at the last also, Yeah. that will also get added. Like if I'm saying tab and I'm adding something like for HR department, that particular row will also be added. You can see the blank information because I did not fill the entire row. So this is dynamic also, right? Correct. Okay, Yes. can you try this out? Yes. Yes. I tried along. Acha, okay. Second, this is the case filter with AND operator, where we can give two conditions and both the conditions are true, right? Can you So repeat? I'm saying filter function with AND operator. This is another scenario in the same function. Okay. Okay. So what happens like here, how many conditions we had? We had one condition like where the department should be HR. But now Okay. here I want to say where the department is HR, but the gender is female or male.
or probably age is greater than 25, any other criteria, anything, then how will Right. you give multiple conditions? So we would be giving multiple conditions in filter function using the AND operator, right? So how Okay. to add, use the AND operator? So we do not use the AND operator writing and open the bracket and all that here. What we Mm-hmm. do, we mention one condition, then we use asterisk sign, multiplication sign, and then we give another condition in a bracket. Okay. Okay? Data. Right. Can you try this out? Like, take the criteria where the department is a website and age is greater than 25. Do this. HR department with female, right? No, HR, sorry, website department, age is greater Website. than 25. Right. Okay. Yes, done. Done? Yeah. Working, right? Yes. We took greater than 25, not less than, not equal to, and Right, greater. greater than 25. Right. Okay. Okay. Now, if there both the conditions were true, then you are getting the result. The normal Yes. logic of AND operator. If you want, like, Exactly. when any of the condition is true and then you want the result, then instead of AND, you would be using OR. And in Oh, that case, instead of asterisk, we will use plus. okay. Can you change that asterisk to plus and see the changes? Yes. Like here, what we are doing is, उसमें हमने female plus जो 25 above age के थे, Right. और इसमें हम female हो या फिर 25 plus हो. Right. Either of the condition is true. ठीक है, तो मतलब इसमें तो सारी एज आ गई. हाँ, तो बेसिकली नहीं, फीमेल हाँ के साथ मतलब जो एज आएंगी आपकी 25 से नीचे, फिर उनके जेंडर मेल होंगे, राइट? हाँ, बिल्कुल 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 हाँ, करेक्ट. बस यही तो होगा कि या तो वो फीमेल हो और मेल हो तो फिर सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल राइट ना हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, राइट राइट राइट. ठीक है. ये ऐसे होगा. ठीक है, तो फिल्टर फंक्शन क्लियर है आपको? Yeah. ठीक है, अब मूव टू यूनिक फंक्शन, द अनदर शीट वी हैव हियर, राइट? Now, for example, you have this data and I want the name of all the employees or all the departments, unique names, not all the names. Like we can have one manager having multiple employees under him, right? But I want the name of only all the managers, just the unique list. What will you do? What you do? This is the unique list, Right. right? But can you copy this? No.
No. right? So how to take this? So basically I have defined this table as a table and the name of the table is unique data, right? Then how you take the unique list equal to the name of the function is unique. Okay, it is asking me what is array. So what is my array? My array is unique data, the table. Yes. The Yes. second argument is by column. It is asking me which column's unique value you want, Hmm. right? If you are not giving the entire array, you can give a column also like this. Yes, we can select. And then you are saying, then it is giving me the unique list. If somewhere you have the zero value as in the blank value, like we have these two last row, it will give a zero also. Like if I'm deleting this, Right. then what happened? That zero must have gone. We're still getting the zero. So somewhere we have the zero in between, Hmm. right? So Yes. basically, this is what is happening, Okay. right? So instead of giving the entire table, you can give a column also. Like here, instead of CC, if I'm giving this manager column this time, it will give me all. And why it is giving me zero? Because I'm selecting the whole column. So the rows at the end, it is considering them as a all the zero Zero. values and giving 1 0 out of all the zeros. Right. Right? So this is the way of taking a unique list. And it remains dynamic also because we have defined it as a table. Hmm. Right? Now, Correct. can you try using all the arguments of this function? Like if I go ahead and say unique, and then I'm giving the array, the whole table, unique data, and it is asking me by column, which column? Then I'm saying unique data like this, and I'm saying, for example, department. Department. Will it work? No. What is the issue? A valid use. I'm saying from this array, give me the unique values on Of the basis department. of this. Then why it is not working? Can you try this out? Yes. आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज किया था क्या? नहीं, इन्वर्टेड कॉमा का कहीं यूज नहीं था. I just said डिपार्टमेंट, मतलब पूरा कॉलम दिया है ना मैंने, इक्वल टू या कुछ तो लिखना ही नहीं है, राइट? राइट राइट. हाँ. So basically, जब इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना अरे, आपके इस फंक्शन के लिए अरे क्या है? आपको पूरी टेबल का तो यूनिक आप निकाल ही नहीं सकते ना, यूनिक हमेशा एक कॉलम का होगा, राइट? तो हम सिर्फ उसको जैसे हम पहले सेलेक्ट कर रहे थे वैसे ही सिलेक्ट बेसिकली करें. एक जो कॉलम होगा वही हमेशा अरे होगा, आप पूरी टेबल कभी मत देना. ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं. ठीक है. ठीक है. तो अगर आप इसके और आगे के आर्ग्यूमेंट्स भी देखोगे, जैसे मैं यूनिक फंक्शन लिखती हूँ बाय कॉलम, मतलब किस कॉलम से आपको ढूंढना है, एंड देन एग्जैक्टली वंस, मतलब बस एक ही बार जो आ रहा हो उसको, या जो बार बार आ रहे हैं उनकी भी आप वो भी चीज कंट्रोल कर सकते हो, राइट? तो आप ये अगर लास्ट वाला केस देखो पहले, फिर हम बाकी के केस करते हैं. ये वाला यूनिक विद ऑल आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो इसमें हमने क्या किया, हमने अरे में दिया है मैनेजर का नाम, ये वाला. फिर हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया है फॉल्स. क्या मतलब है इसका? यूनिक डेटा मैनेजर ये रिपीट. बाय कॉलम क्या होता है? बाय कॉलम इज अ लॉजिकल वैल्यू, कंपेयर रोज अगेंस्ट ईच अदर एंड रिटर्न द यूनिक रोज. वही रिपीटेशन का मैनेजर के हमने नीचे. फॉल्स लिखा है. हाँ. और थर्ड क्या है?
जो सिर्फ एग्जैक्टली एक बार आ रहा हो, मुझे वो चाहिए। इसलिए मुझे Right. सिर्फ गोपाल दिखा रहा है क्योंकि गोपाल एक बार आ रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगी ना तो क्या होगा? I will get more values More values, right? like this, Right. right? So this Correct. is one case. इसको करो पहले। Yes. True. ठीक है, डन। हो गया? हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे यूनिक लिस्ट चाहिए उन मैनेजर्स की जो सिर्फ मेल हैं, व्हाट विल यू डू? यूनिक लिस्ट चाहिए जो सिर्फ मेल है। हाँ, तो तो जैसे आप क्या करोगे? यूनिक फंक्शन के साथ फिल्टर फंक्शन यूज करोगे, राइट? राइट, करके देखो, साथ में लिखो, आई वांट द यूनिक लिस्ट ऑफ ऑल द मैनेजर्स हु आर मेल्स। ठीक है। मतलब इक्वल टू यूनिक करके ऊपर मैनेजर वाली लिस्ट कलेक्ट करके ब्रैकेट में हम मेल लिखेंगे ना। करके दिखाओ, लिख के देखो, होगा नहीं बाद में। ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, यूनिक विद फिल्टर, ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको अपनी शीट में? हाँ। देखो यूनिक फंक्शन लगाओगे और यूनिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप फिल्टर फंक्शन लगाओगे जिसमें सप्लाई करोगे ये पूरा डिपार्टमेंट जो कि हमारा हाँ। अरे है, और फिर बोलोगे हाँ। यूनिक डेटा जेंडर इज फीमेल। तो बेसिकली सबसे पहले आपको फिल्टर फंक्शन क्या देगा, अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट देखो। ये जो अंदर वाला आपका फंक्शन है ये आपको उन डिपार्टमेंट की लिस्ट देगा या उन मैनेजर की लिस्ट देगा जो सारे के सारे फीमेल हैं। हम्म। उसको यूनिक फंक्शन उनमें से यूनिक वैल्यू निकाल के यूनिक वैल्यूज दे देगा। अब लिख के देखो इसको, खुद लिख के देखो इसको हटा के। एक बार दोबारा दिखाओगे आप? ये आपकी शीट में भी है, मेरी मेरी शीट, शीट मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? विद द लिस्ट है, विद द टेबल है, विद यूनिक विद यूनिक, फिल्टर वाला सेक्शन देखो। यूनिक विद बैंक, यूनिक विद ऑल आर्ग्यूमेंट्स इधर तक है। नहीं, ये पूरा नहीं। ऊपर होगा, यूनिक विद ऑल आर्ग्यूमेंट्स तो लास्ट है, उसके ऊपर देखो यूनिक विद फिल्टर होगा। एक सेकंड, मेरी ये टेबल शायद ऊपर नहीं जा रही है। मेरी स्टार्ट ही यूनिक डिपार्टमेंट विद द लिस्ट है। हाँ स्टार्ट है, उसके नीचे ये होगा लिस्ट के बाद टेबल, राइट? क्या क्या 4-5 ही आ रहे हैं मेरे में। यूनिक मैनेजर्स विद टेबल होगा नहीं, ये उसके वाली आप बाद। शीट मुझे दोबारा भेज दोगे? हाँ यूनिक मैं मैनेजर्स विद टेबल है। अभी भेज रही हूँ।
ईमेल आईडी किससे शुरू होती है? BHAYANA। ठीक है, भेजती मैंने शीट आपको। ठीक है उसको खोल के ना फिल्टर वाला करो, यूनिक विद फिल्टर। ठीक है। Yeah, it is working now. वर्किंग? Yeah. ठीक है, अब ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक यूनिक फंक्शन केस सेंसिटिव होता है? मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट निकाली है, ठीक है? अब इस डिपार्टमेंट में मान लो एक वेबसाइट कैपिटल डब्ल्यू के साथ है और दूसरा वेबसाइट स्मॉल डब्ल्यू के साथ है, तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे 2 एंट्री आएंगी, एक आएगी? एक ही आ रही है? हाँ, इट मींस इट इज नॉट केस सेंसिटिव। सेंसिटिव नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हम्म। ठीक है? तो ये केस Right. सेंसिटिव नहीं होता, ये सारे केसेस हमने कवर कर ली, तो आप इसको प्रैक्टिस करना। और ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है डैशबोर्ड्स पे, आप जैसे मैनेजर के लिए ऐसी फंक्शनैलिटी लगा सकते हो, राइट? तो ये बहुत हेल्प करते हैं फंक्शंस। थर्ड होता है हमारा सॉर्ट। वैसे तो आप सॉर्टिंग कैसे करते हो? सॉर्टिंग करते हो सिंपल कॉलम पे गए, डेटा पे गए और यहाँ से आप सॉर्टिंग कर लोगे, राइट? लेकिन आप सॉर्टिंग करके एक अलग टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब ये टेबल आपकी अफेक्ट नहीं होगी, जो भी सॉर्ट होके डेटा आएगा वो इधर आएगा एज अ सेपरेट टेबल, राइट? तो इसमें हम 2 सिनेरियोज करेंगे। वी विल यूज सॉर्ट फंक्शन विद ऑल द आर्गुमेंट्स, जो भी इसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, देन वी विल ट्राई टू यूज सॉर्ट विद फिल्टर एज वेल। ओके, ठीक है, तो अभी सॉर्ट और सॉर्ट फंक्शन के सारे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो इक्वल टू सॉर्ट ओपन ब्रैकेट करते हो, आपको यहाँ पे 4 आर्गुमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है? अरे जिसमें आप ये पूरी मेन टेबल सप्लाई करोगे, राइट? सॉर्ट इंडेक्स क्या होता है? सॉर्ट इंडेक्स इज अ नंबर इंडिकेटिंग द रो एंड कॉलम टू सॉर्ट बाय, मतलब आपको सॉर्टिंग करनी किससे है? मैनेजर के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, किस कॉलम से, राइट? ठीक है? तो वो आप कॉलम मेंशन करोगे। सॉर्ट ऑर्डर आपको डिसेंडिंग चाहिए या असेंडिंग चाहिए, ठीक है? अगर आप 1 लिखते हो दैट इज फॉर असेंडिंग, अगर आप -1 लिखते हो तो डिसेंडिंग, और अगर आप थर्ड आर्गुमेंट में कुछ नहीं लिखते तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है, राइट। ठीक है? फिर एक ये फोर्थ आर्गुमेंट होता है, इज अ लॉजिकल वैल्यू इंडिकेटिंग द डिजायर्ड सॉर्ट डायरेक्शन, ठीक है? अगर आप फॉल्स लिखते हो तो वो रो के हिसाब से सॉर्ट होगा, ट्रू लिखते हो तो कॉलम के हिसाब से, इसलिए हमेशा फोर्थ छोड़ देना, क्योंकि रो के हिसाब से कोई सॉर्टिंग करता ही नहीं है, कॉलम के हिसाब से होती है, ठीक है? अब देखो इसमें आर्गुमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं। हमने लिखा है सॉर्ट डेटा विच इज द नेम ऑफ दिस टेबल, फिर हमने लिखा है 3 क्या है मेरा? 1 C डिपार्टमेंट, राइट? डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग हुई है। देखो ये W बाद में आ रहा है ना, मतलब W लास्ट होता है ना A to Z में, यस यस Z यस, पहले आ रहा है, और थर्ड आर्गुमेंट है -1, मतलब मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तभी ये W पहले आ रहा है। अगर मैं इस -1 को सिर्फ 1 कर देती हूँ तो मेरा A वाला पहले आएगा, राइट? देखो F पहले आ गया, यस। राइट? लगा के देखो इसको, हाँ, ये साथ साथ ही कर रही हूँ। ठीक है? हो गया ये, हाँ, बस 1 सेकेंड। यस, हो गया। ठीक है? अब ये सॉर्ट को फिल्टर के साथ यूज करो। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आप सॉर्ट में भी फिल्टर लगा रहे हो। कैसे फिल्टर लगा रहे हो? आप ये कह रहे हो
कि इस डेटा को सॉर्ट करो हाँ, जहां पे डिपार्टमेंट वेबसाइट है और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? ओके, तो क्या हाँ, हुआ, आपको इस पूरी टेबल में से सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट वाला डेटा मिला, राइट? और हाँ, वो किस हिसाब से सॉर्ट हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। ऑफ द नेम, राइट। ठीक है, अब नेम तो हमने कहीं दिया नहीं है, हाँ, तो इसने कैसे पकड़ा? करके देखो, लगा के देखो, लॉजिक समझ में आएगा। दिया है ना आपने, कॉलम नंबर 1, आपको लग रहा था ये असेंडिंग का 1 है? नो, कौन सा असेंडिंग वाला? का बाय डिफॉल्ट होता है, राइट? हाँ, ठीक है, तो दिस इज द वन नॉट फॉर असेंडिंग, दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट जहां पे आप कॉलम नंबर देते हो। अच्छा, गॉट इट? तो अगर हम थर्ड यहाँ आर्गुमेंट हमने माइनस दिया ही नहीं है, क्योंकि अगर आप दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 असेंडिंग के लिए ही होता है और वो डिफॉल्ट होता है। ठीक ठीक है, है, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, लगा के देखो इसको। तो बस इफ इन दिस केस अगर सिमिलरली हम -1 लगाते हैं तो नेम्स पे वो आता कि हम बिल्कुल, डिसेंडिंग रख रहे अगर हैं, आप इसमें यहाँ पे राइट। -1 लगा दोगे इसकी जगह, तो वो क्या होगा, ये देखो, डिसेंडिंग हाँ, हो ये गया ना? चेंज हो गया। हाँ, तो आप इसको फिल्टर के साथ भी यूज कर सकते हो। जो फिल्टर होता है ना, वो इन हाँ, बाकी के सारे फंक्शंस में कॉम्बिनेशन में यूज होता ही है, इसीलिए हम सबसे पहले फिल्टर बढ़ाते हैं। ठीक है, कर लेती हूँ बस अब। कोल्ड हो रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत टाइम से। वेरी बैड सीजन एक्चुअली। मतलब सभी बीमार है, आई गेस। इतना बुरा हाल है सबका। दिल्ली फिर में ऑफिस जाना पड़ता है। तुम्हारा वर्क फ्रॉम नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो कितनी बार लाइक जाके मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। मेरा मतलब बहुत हेक्टिक चल रहा है आजकल। मैं कल भी रात को आई गेस 9 बजे घर पहुंची हूँ। तो ये लोग कोरोना का इनको कुछ वो नहीं है, फॉलो नहीं करते कंपनी वाले? वो खुद नहीं आते। मतलब इतना एमएनसी टाइप नहीं है ना। वो खुद हम्म। नहीं आते बट अपने एम्प्लॉयज को जरूर बुलाते हैं। और किसी को हो गया कोविड तो? तो हाँ, कि चलो ठीक है घर बैठ जाओ। ओहो, हम तुम्हारे तो सब पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं? हाँ। यार एक्चुअली ये है ना कि ऑफ आजकल कोई भी इतनी वो नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं ले रहा है। मुझे लगता है अगर मैं टेस्ट भी कराती तो आई गेस आई वुड हैव बीन पॉजिटिव। अच्छा, ये ठीक है, हो गया है। हो गया। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखो सॉर्ट बाय। तो बेसिकली सॉर्ट और सॉर्ट बाय में डिफरेंस क्या है फिर? अब सॉर्ट बाय में आप क्या कर सकते हो, आप फिल्टर सॉर्टिंग को कई लेवल पे कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो पहले नेम के हिसाब से सॉर्टिंग करो, फिर हाँ, डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग करो, या फिर पहले डिपार्टमेंट को सॉर्ट करो, दिख रहा है आपको फाइनेंस के नीचे एचआर, फिर हम्म, प्रोक्योरमेंट, फिर सेल्स, और फिर विद इन डिपार्टमेंट सॉर्टिंग करो। लाइक दैट, लेयर्स ऑफ सॉर्टिंग बेसिकली। ठीक ठीक है, है, कम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपने पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग की है और फिर हमने की हुई है सैलरी से, दिख रही है आपको, पहले डिपार्टमेंट हाँ, से फिर सैलरी से। सो आप हम्म, लेयर क्रिएट कर सकते हो। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास फंक्शंस के? देखो, अरे ये जो मेरी टेबल है इसका मैंने नाम रखा हुआ है सॉर्ट बाय डेटा, राइट? हाँ, तो आप हाँ, कह रहे हो पहले उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग करो असेंडिंग ऑर्डर में, 1, राइट? हाँ, फिर कह रहे हो आप सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग सैलरी करो के हिसाब डिसेंडिंग से ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, और इस राइट। तरीके से आप और भी चीजें और भी लेयर ऐड कर सकते हो। टैप प्रेस करोगे, जितने टैप प्रेस करोगे उतने कॉलम बनते चले जाएंगे ये। हम्म, ठीक है, इसको करेक्ट। लगा के देखो, हाँ, इसको लगाओ, मतलब बेसिकली तीनों केस करके देखो। ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, हाथ आपको चलाना है और वो आना चाहिए। A to Z सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
फर्स्ट और थर्ड तो हो गया, सेकंड वाला एक बार बताओगे? हाँ हाँ, सेकेंड वाले में क्या है देखो, सॉर्ट डेटा बाय डिपार्टमेंट इन A to Z ऑर्डर, ठीक है, देन सेल्फ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बट जस्ट शो द नेम्स, मतलब बाकी मुझे कुछ देखना नहीं है, ये ऑर्डर लगा के मुझे नेम डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। हाँ। तो मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट इन A to Z ऑर्डर, राइट, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर, और मैंने पूरा अरे की जगह अरे में सिर्फ नेम ले लिया है, क्योंकि ये मुझे फाइनली दिखाना है, ठीक है। बस ये करना है। जब हम यहाँ पे पूरा अरे लेते हैं तो ये सॉर्टिंग करने के बाद पूरा अरे डिस्प्ले होता है ना यहाँ पे, हाँ तो हाँ इंस्टेड हाँ। ऑफ द अरे जस्ट टेक द नेम्स। ठीक है, एक सेकेंड करके देख लो। ठीक है, हो गया। हो गया, हाँ हाँ। ठीक है। जो फिफ्थ फंक्शन है सीक्वेंस, इसका मतलब आप सीक्वेंस भी कंट्रोल कर सकते हो या सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पे नाम लिखते हो सीक्वेंस फंक्शन का, आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, और कितने इंक्रीमेंट पे, मतलब जैसे अगर 1 के बाद 2 आता है तो इंक्रीमेंट 1 हुआ ना, 2 के बाद 12 आता है तो इंक्रीमेंट आपका 10 है, तो स्टेप कितना लिया आपने, 10 का स्टेप लिया, राइट। तो आप ऐसे करके कोई भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। लाइक आई एम सेइंग आई वांट 4 रोज 2 कॉलम्स, स्टार्ट विद 5 एट द गैप ऑफ 3, राइट। आ गया। तो वो जो गैप है वो आपका इन दोनों के बीच में है, 3, इन दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। राइट। तो ये हो कैसे रहा है, 5 में 3 ऐड हुआ 8, 8 में 3 ऐड हुआ 11, 14, 17, लाइक दिस। ओके। बेसिकली यू कैन जनरेट रैंडम नंबर्स यूजिंग दिस फंक्शन। कई बार चाहिए होता है ना हमें कुछ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो आप ऐसे जनरेट कर सकते हो। करके देखो इसको। ठीक है, हो गया,
ठीक है, एक सिक्स फंक्शन है रेंड अरे। अभी हम क्या कर रहे थे, सीक्वेंस जनरेट कर रहे थे। रेंड अरे क्या होता है, डिफरेंस क्या है देखो, ये लिखा, सेम चीजें पूछ रहा है, रोज कितनी, कितने कॉलम, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इंटीजर चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली वो स्टेप आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि बीच में 3 का गैप हो, 4 हो, ये टोटली रेंडम आएगा। जैसे मैंने बोला 4 रोज 3 कॉलम, मिनिमम शुड बी 1, मैक्सिमम शुड बी 0, इंटीजर या डेसिमल, किस तरह की चीजें चाहिए, मुझे चाहिए इंटीजर, राइट। तो ये जनरेट करके दे देगा कुछ भी रेंडमली। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। सीक्वेंस में हर चीज आप कंट्रोल कर रहे हो, रैंडम अरे में सब कुछ रैंडम होगा। वैसे ये मतलब और कहाँ बेनिफिट होगा इस फंक्शन का हमें, लेकिन कई रैंडम ये हम कई बार हमें चीजें चाहिए होती है रैंडमली, कुछ टेस्ट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये हम रैंडमली ऐसे जनरेट कर सकते हैं, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब एक या तो बिग सोर्स ऑफ डेटा हो तो उसमें भी ये फंक्शन लग पाएगा कि हम उसमें से कुछ रैंडम नंबर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें देने के लिए कोई सोर्स नहीं है, राइट। हम इसमें कुछ भी अरे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये बस रैंडम है कि आपको कुछ भी सीरीज रैंडमली जनरेट करनी है टू टेस्ट समथिंग, टू डू समथिंग, इंडेक्स, जैसे हम फ्लैग्स क्रिएट करते हैं ना प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेज, हाँ हाँ हाँ। उस तरीके से। तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। और ये चेंज होता रहेगा जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना शीट को, हाँ देखो ये नंबर चेंज होते रहते हैं बहुत बार अपने आप, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये लाइक जब कोई डेटा भी हमें देखो मिलता है कई बार ऐसा होता है देखो कि वो कोई भी, रिफ्रेश होता है कोई डेटा। देखो इस रो पे जाके आप एंटर करते हो, देखो डिजिट चेंज हो गई, लेकिन हाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में, आपने कंट्रोल किया हुआ है कि मुझे 5 से शुरू करके 3 के गैप पे चाहिए, तो चेंज कैसे होगा, वो होएगा ही नहीं। तो वो कई मुझे बार ऐसा होता है कि आप लोग कुछ डेटा ऐसा देते हो स्टूडेंट्स को कि उसके बाद वो डेटा चेंज होता रहता है, राइट, मतलब वो इसी से ही होता है रिफ्रेश कर करके। बिल्कुल इसी से चेंज होता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो एक्सेल के टेस्ट लेती है ना, वो भी ये फंक्शन लगा के देती है ताकि लोग चीटिंग ना कर पाए, वो हाँ सबकी शीट में अलग बेसिकली अलग आता है। कॉलेज में डेटा जब मिलता था तो ऐसे ही मिलता था कि बार बार डिजिट्स चेंज हाँ, होते रहे। वो चेंज होता रहता है, तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि बट वो बेसिकली ये टेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली कि आप फॉर्मूला ठीक लिख रहे हो कि नहीं। हाँ, बट इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन फंक्शन, तो राइट, डिजिट्स चेंज करके क्या हो जाएगा। डिजिट चेंज आप करके ये होगा, मान लो मैं इस पे तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इफ ऑपरेटर का यूज करके दिखा दो, ठीक है। आपने हाँ लिखा है यहाँ पे इफ दिस वैल्यू इज हाँ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, हाँ देन से ग्रेटर, राइट। हाँ तो क्या हुआ, फॉल्स, बिकॉज ये ग्रेटर नहीं है। हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आई और जब मैं इसकी वैल्यू ऐसे चेंज करती हूँ, ये कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। कॉलेज को ये चेक नहीं करना कि आपका रिजल्ट ट्रू आया है फॉल्स, वो इस पे क्लिक करके ये देखेंगे आपको फंक्शन लिखना देखते आता हैं है कि नहीं। फंक्शन कौन सा लगा है। हाँ हाँ, और अगर वो ये यहाँ ये सेम दे देंगे तो बच्चे चीटिंग कर लेते हैं कि तेरा फॉल्स वाला है, मेरा ट्रू आ रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस केस में वो कोई तो इलाज ही फिर नहीं है। वो तो बच्चों के दिमाग के ऊपर है, लाइक इफ इन केस राइट, मुझे भी कोई डेटा मिल रहा है तो आई जस्ट चेक द फंक्शन की फंक्शन क्या लग रहा है कि राइट। रोज कौन किस तो तरह से ये लगा है। रैंडमली, और वैसे भी आपको जब डमी डेटा चाहिए होता है ना कुछ टेस्ट करने के लिए, तो आप तो टाइप आप करते हो, आपने देखा है कि मान लो यहाँ 3 हो 4 हो, फिर यहाँ पे हाँ ये हाँ हो, हम ऐसे बात करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप एक हाँ। फंक्शन लिख के सीधा सीधा इसको जनरेट कर लो। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज में काम आ सकता है, राइट, देखा राइट, जाए वहीं पे तो। काम आएगा ये। ठीक है ठीक है, मुझे आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 1.25 घंटे की चाहिए, तो कब ठीक। शेड्यूल करनी है, क्योंकि उसमें एक असेसमेंट भी रहेगा आपका ना। हम्म। हाँ, डैशबोर्ड सिखाऊंगी मैं आपको, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है और ठीक साथ है। में असेसमेंट रहेगा, तो आप मुझे स्लॉट बताओ। अभी आपका ये 45 मिनट्स का हुआ है हाँ। हाँ, ये जो है ये बताओ कैसे करना 7 मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑल्दो शायद मेरी 26 की छुट्टी है, है। बट आई एम ट्रैवलिंग ऑन दैट डे। तो इस वीक में मैं ट्राई करती हूँ, फिर चेक करना हाँ, पड़ेगा आप क्योंकि मैं मुझे आपको पिंग कर बता रही देना, हूँ ठीक है। ऑफिस की छुट्टी नहीं हो पाती है मेरी। हम्म, मैं बताती हूँ आपको, मतलब इस वीक आप में हम मुझे, खत्म करते हैं, चाहे हाँ, संडे तक हो, हम्म, बट खत्म करते हैं हम संडे तक। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे बता देना जैसे भी हो। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगी, तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके, बाय।